Good morning, students. Today we are going to discuss about personal financial planning. Now, this is a very general topic that we are discussing. It is planning your finances. Personal financial planning stands for planning your own finances. Okay? Now, first of all, before understanding personal financial planning, we need to understand, all of you are aware of what is planning. Planning क्या होती है, right? So planning is when you are planning well coordinated efforts, activities to achieve your objectives. आपका फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को अचीव करने के लिए यू प्लान वेल इन एडवांस. तो प्लानिंग इज यू आर प्लानिंग फॉर योर गोल्स, फॉर योर एक्टिविटीज इन एडवांस. नाउ दैट प्लानिंग वी आर अप्लाइंग फॉर प्लानिंग आवर ओन फाइनेंसेस. नाउ बिफोर दैट, व्हाई वी नीड टू प्लान आवर फाइनेंसेस. हम लोगों को क्यों ज़रूरत है कि हम अपने फाइनेंसेस को प्लान करें? द रीज़न इज़ दैट ऑल ऑफ अस वांट्स टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ. हम लोग ये चाहते हैं कि हम जो भी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं या फाइनेंशियली वी शुड ग्रो, ठीक है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं सो वी आर एबल टू फेस दैट क्राइसिस. We are able to face any contingencies which life has thrown on us. So this is the reason we require planning. We require planning for our finances. So this is this topic basically deals with how you will plan your finances and why this is important in your life. What is the process behind planning your finances? ठीक है? So all of you know what is planning. So if we come to personal financial planning, so personal financial planning is the proper planning and implementation of coordinated plans to achieve your financial objectives, right? When we are planning for something, I've already told you कि हम प्लान करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. सो नाउ हेयर हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स. Every person has different financial objectives, different financial goals. मेरे financial objectives will not be similar to your financial objectives. आप लाइफ में कुछ और अचीव करना चाहते हैं फाइनेंशियली, मेरे टारगेट्स कुछ और हैं फाइनेंशियली, बट वो टारगेट्स कैसे अचीव होंगे? वी कैन नॉट जस्ट सिट एंड ड्रीम कि आई हैव दिस टारगेट एंड आई विल बी अचीविंग दिस टारगेट बाय एंड ऑफ द ईयर. यू कैन नॉट डू दैट. To achieve your target, to achieve your financial objectives, you need to plan your finances. So personal financial planning is when you are applying, when you are planning to achieve your financial objective, right? Now it does not involve only managing and investing your money. It is not like that कि in financial planning you'll just be managing and investing your money. It is a very wide term apart from just managing and investing. You focus on your income, you focus on your expenditures, you focus on your taxation, right? You focus on building your assets, you focus on building your properties, right? So all these things are covered under personal financial planning. I hope the meaning of term personal financial planning is clear. Like all of you have learned that financial planning is when we are planning about how much funds we require, right? From where we'll arrange those funds, how we will apply those funds. We have learned all these things in our financial accounting subjects also. But all that planning we did for corporates, all that planning we did for companies, all that planning we did for government organization. But what about our personal lives? So this financial planning is for us, for an individual investor, how he or she will personally grow in her life financially, right? So
personal financial planning, what basic needs and requirements of personal financial planning. I have already told you in introduction that basic reasons. This is something which is applicable to everybody's life. What are the basic reasons we require financial planning in our life? Obviously, any emergency can happen. So for that, we should always be prepared. We should always be prepared to meet any emergency which can happen in our life. We should always be prepared to pay unexpected bills. We should always be prepared to, if we want to buy something for ourselves, we need to make money available for us. These are some simple reasons, right, for which we require financial planning. We need to construct a house for ourselves. This is one of the reasons we require financial planning. We need to buy a car for myself, right? So this is the reason I require financial planning. You cannot just go to the market and buy a car for yourself. You need a plan for that. You need to manage your finances for that, right? Then at the end of the year, if you are working and you come under a taxation slab, then you need to manage your taxes also. How you can save your taxes, what are the exemptions available for your taxation, what are the deductions available to you. These are the things which will help you to manage your, which this financial planning will help you to plan your taxation, right? Then suddenly inflations occur, एकदम से महंगाई बढ़ जाती है, then what you will do? कैसे सर्वाइव करेंगे? अब लाइक you can take an example of current scenario. Everything was locked down due to COVID situation. Offices got shut down, colleges got shut down, businesses got shut down. Then how people will survive? At that time कैसे survive कर पाओगे आप? So for that was a contingency, that was a sudden emergency. अगर आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड हो, पहले से आपके पास कुछ सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी इमरजेंसीज में यू कैन इजीली सर्वाइव. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस अ पर्सन एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रिक्वायर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इन हिज और हर लाइफ, राइट? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे मेजर जो रीजन है वो है योर पीस ऑफ माइंड. हमें पीस ऑफ माइंड कैसे मिलता है? हमें पीस ऑफ माइंड तब मिलता है when we are financially stable, when we know that if anything happens, I'll be able to control the situation, then we have a peace of mind. हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें? सो दैट कि हम एक गुड स्टेबल लाइफ स्पेंड कर सके, एक पीस ऑफ माइंड मिल सके. तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए ज़रूरी है. Now, financial planning ज़रूरी है, but how you will do that financial planning? What is the process you are going to follow for financial planning? Now, again, this is the thing, like in financial accounting, when we do financial planning for our corporates, for our companies, उनके लिए जब हम financial planning करते हैं, then we need a proper standard to be followed. एक स्टैंडर्ड होता है जो हमें फॉलो करना है, एक गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी है. वाई वी नीड टू फॉलो दैट? बिकॉज देर इज सम अथॉरिटीज, देर इज सम ऑर्गेनाइजेशन विच इज गोइंग टू ऑडिट अस, विच इज गोइंग टू चेक अस whether we have done it right or wrong. But in case of an individual investor, it totally depends on you. ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करोगे, जो आपको सही लगता है, जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपसे कहता है कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू, वैसे आप अपना फाइनेंशियल प्लान कर सकते हो. बट स्टिल इफ़ वी टॉक अबाउट जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, कि अगर आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू रिक्वायर इज अपने माइंड में क्लैरिटी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो आप अचीव करना चाहते हो, क्या गोल है आपका? तो सबसे पहले
प्लान तो आप तभी करोगे जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो सेट योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप इज योर सेटिंग योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। नाउ यू हैव सेट योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है, यू नो दैट दिस इज द थिंग आई वांट टू अचीव। नाउ एनालाइज योर सिचुएशन। क्या आपकी इनकम आपको ये अलाउ कर रही है? क्या आपकी एक्सपेंडिचर्स आपको ये अलाउ कर रहे हैं? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ये अलाउ कर रही हैं? अपनी पर्सनल सिचुएशन को एनालाइज कीजिए कि जो आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स में आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या आपका सपोर्ट कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो आप उन सिचुएशन से कैसे एनालाइज करें, कैसे उन सिचुएशंस को यूज़ करें कि आप अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सको। दिस इज प्लानिंग, राइट। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद यू नीड टू एनालाइज योर फाइनेंशियल सिचुएशन। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जब आप एनालाइज करेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि आपके पास कितनी इनकम है, क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, आप कितना सेव कर सकते हैं, आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन से मेजर हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो फॉर द टाइम आप लीव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एनालाइज करोगे जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देन सिचुएशन एनालाइज करने के बाद यू विल डेवलप अ फाइनेंशियल प्लान फॉर योर सेल्फ। नाउ दिस फाइनेंशियल प्लान विल कवर हाउ यू विल अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, इट कैन बी अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्टिव, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको 1 लाख की सेविंग करनी है। बट अब 1 लाख की सेविंग करनी थी, 1 लाख की सेविंग के लिए आपका ऑब्जेक्टिव था 1 लाख की सेविंग। आपने अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया दैट योर इनकम इज वेरी लेस फॉर दैट। नाउ यू हैव एनालाइज्ड योर सिचुएशन, नाउ डेवलप अ प्लान फॉर दैट कि आप उस सिचुएशन में से, आप उस इनकम में से, अर्निंग में से कैसे 1 लाख सेव कर सकते हो, राइट। या फिर यू नीड टू डेवलप अनदर सोर्स ऑफ इनकम। आपको उस एक ईयर में एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, आपको उस पर्टिकुलर ईयर में कुछ एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं, राइट। आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिसाइड करना है कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन नॉट बेयर या दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम गोइंग टू टेक। ऐसे सिचुएशंस को एनालाइज करके अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करेंगे जो विल हेल्प यू टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। देन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो भी प्लान्स हम बनाते हैं वो सिर्फ प्लान रह जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, अचीवमेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं अगर आप उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, राइट। तो डेवलपमेंट ऑफ प्लान इज फर्दर प्रोसीडेड बाय implementation of plan. Now you have decided that I will generate another source of income through which I will be able to make a saving of 1 lakh by the end of the year. So start searching for that, right. Generate source of income. Start looking for the source of income जिससे आप अपने income में increase कर सकते हो, through which you can go closer to your financial objective. And after implementation of plan, monitoring is very important. Once you have made a plan, once you have implemented a plan, don't forget to monitor your plan. Monitor it on a regular basis, monitor it on whether monthly basis, half yearly basis, to check whether you are going as per plan or not, or whether your plan is working for you or not. If it is not working for you, revise it. Take corrective action immediately. If you seriously want to achieve your objective, revise your plan, right. Revise your plan, monitor your plan regularly, revise your plan, make corrective actions, make changes wherever required to achieve your objective. So this is the process we need to follow when we want to achieve our financial objective.
हमें everyone has a limited source of income, everyone has their own expenditures, everyone has their own responsibilities. उन्हीं सब चीज़ों में हम लोगों को मैनेज करना है, उन्हीं सब चीज़ों में we need to grow financially, we need to be financially independent, उन्हीं सब चीज़ों में. So we need to make a plan for that. Now various factors which are affecting your financial planning are, अब अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये प्लानिंग किया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर सेविंग किया है एंड ही इज़ गेनिंग हायर रिटर्न्स इन दैट, सो आई विल ऑल्सो डू द सेम एंड इट विल बेनिफिट मी ऑल्सो. दिस इज नॉट ट्रू इन एवरी केस. वाई? बिकॉज हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, दो लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग एक जैसी नहीं हो सकती है. बहुत सारे रीजंस हैं. वो रीजंस क्या हैं? कुछ रीजंस हैं पर्सनल फैक्टर्स. फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग योर फाइनेंशियल प्लानिंग आर पर्सनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. नाउ पर्सनल फैक्टर्स, आपकी एज, राइट, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंडिचर्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, राइट, योर लाइफस्टाइल. ये चीज़ें जो होती हैं वो दो पर्सन्स की वेरी करती हैं. तो दोनों पर्सन्स का फाइनेंशियल प्लान सेम नहीं हो सकता है. यू कैन नॉट कॉपी फाइनेंशियल प्लान ऑफ योर फ्रेंड एंड अप्लाई दैट टू योर प्रेजेंट लाइफ. इज इट क्लियर? सो फाइनेंशियल प्लानिंग में पर्सनल फैक्टर्स इज गोइंग टू अफेक्ट योर फाइनेंशियल प्लान. जब भी आप फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, दो लोगों का फाइनेंशियल प्लान कभी भी सेम नहीं होता है, क्योंकि हर पर्सन की इनकम अलग है, एक्सपेंडिचर्स अलग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, प्रेजेंट कंडीशंस अलग हैं, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, लाइफस्टाइल अलग है, राइट, रिस्क प्रोफाइल, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ अलग अलग हैं. सो दो लोगों के प्लान्स कभी भी सेम नहीं होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सनल फैक्टर्स, वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो इफेक्ट आर फाइनेंशियल प्लानिंग. वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री. आपके कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी रेट क्या है, आपका कंट्री किस रेट पे ग्रो कर रहा है, दैट विल इफेक्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ पीपल इन दैट कंट्री, राइट. बैंक रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे जब आपको एफडीज पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जब आपको इन्वेस्टमेंट पे हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी हैबिट्स जो होंगे, यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. बट वही अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना कम कर दोगे, सेव करना कम करोगे. इन्फ्लेशन, आपको सबको पता है, महंगाई, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जितनी महंगाई बढ़ती है हम अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं. तो उस टाइम पे, एट दैट टाइम वी अवॉइड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स. हम उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा कम कर देते हैं. तो हम अकॉर्डिंगली हमारा प्लान विल वेरी. एंड रिस्क अटैच्ड विद इन्वेस्टमेंट. हर एक इन्वेस्टमेंट्स के साथ डिफरेंट रिस्क अटैच्ड है. किसी के साथ हायर रिस्क है, किसी के साथ लो रिस्क है. तो what kind of person you are, आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो, that will affect your financial plan, that will affect your decisions regarding investment. So these are some of the reasons कि factors which affect your financial plan. अब जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसके लिए एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लाइफ के कौन से स्टेज पे हैं. एक इन्वेस्टर थ्रू आउट जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स वेरी करती हैं हर एक पर्सन की. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एज इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच इफेक्ट योर फाइनेंशियल प्लान. तो दिस इज़ द रीज़न दैट इट इफेक्ट्स योर फाइनेंशियल प्लान. तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक इन्वेस्टर की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. अर्ली करियर, मिड करियर, लेट करियर एंड रिटायरमेंट. एंड अर्ली करियर, नाउ अर्ली करियर इज योर first now early career is your first 25 to 27 years, right. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे you have just completed your education, you have just got a new job or you have just entered a new business. ठीक है. तो it is quite obvious जो यहाँ पे आपकी इनकम है, राइट, इनकम आपकी वेरी लो है, बिकॉज ऑफ विच
नेट वर्थ भी आपकी क्या होगी, लो हो गई, बिकॉज ऑफ विच सेविंग्स जो आप करेंगे वो भी लो है, ज़ीरो होंगी सेविंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट का स्टेज है अर्ली करियर, अर्ली करियर में आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है ज़ीरो, राइट। यहाँ पर आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का कोई भी स्कोप नहीं है। इनफैक्ट यू कैन से कि इस स्टेज पे दो यू आर वर्किंग, दो यू हैव एंटर्ड अ न्यू बिजनेस, मे बी, बट स्टिल मे बी यू मे बी dependent on someone, maybe you may be dependent on your parents or your family. Then comes mid career, mid career and late careers, we can call it as a combined stage also. This stage varies from 30 to 55, you can say. Okay, now 30 to 55 ईयर्स ऑफ एज, एक इन्वेस्टर का 30 से लेके 55 ईयर्स का जो एज है, इट इज़ द स्टेज जहाँ पे मैक्सिमम आपकी लाइफ की चीज़ें हो रही हैं। यू आर गेटिंग सेटल्ड इन लाइफ, you are getting maximum job opportunities, maximum career opportunities, your income is growing in this stage, your responsibilities are also growing in this stage, your expenditures are also growing in this stage, right? Everything, मतलब इस स्टेज पे you have maximum responsibilities, and this is the stage where you will make maximum savings and maximum investment, maximum savings and investment. Why? Because this is the stage वो जहाँ पर आप assets create करोगे अपने लिए, this is the stage जहाँ पे आप liabilities incur करोगे अपने लिए, this is the stage जहाँ पे maximum responsibilities पूरी करोगे, this is the stage where your income will be continuously growing, right? तो 30 to 55 years का जो stage है, that is the stage जहाँ पर आपकी you have a ability to grow your income, you have a ability to take maximum risk in your investment. अब जो यहाँ पे person invest करेगा उसके पास investment opportunity क्या है, zero है, he will not invest anywhere, or even if he will invest तो वो investment कैसी होगी, it will be very minimum investment. But इस stage पे जो person है, investor है, he will be investing in investment with higher returns, जहाँ पे उसको higher returns मिलेंगे, right? Because यहाँ पे he will be ready to take risk. वो रिस्क क्यों लेना चाहेगा? बिकॉज उसे पता है कि उसकी इनकम इज ग्रोइंग एंड ही रिक्वायर्स ऑल्सो दैट उसकी इनकम शुड ग्रो. ठीक है, तो एट दिस स्टेज पर्सन इन्वेस्टर कैन टेक रिस्क ऑल्सो, इवन इफ दे डोंट वांट टू टेक हायर रिस्क, दे विल स्टिल इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट विद स्टेबल रिटर्न्स. वो स्टेबल रिटर्न्स वाली इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लो रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट दिस इज द स्टेज जहाँ पर एक पर्सन की मैक्सिमम सेविंग्स, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स होंगी. देन कम्स रिटायरमेंट स्टेज. दिस इज द स्टेज जब आपकी इनकम जो है वो अगेन ज़ीरो हो जाएगी, राइट? यू विल बी डिपेंडेंट ऑन अर्लियर इन्वेस्टमेंट्स. whatever savings and investments you have done earlier, उन इन्वेस्टमेंट्स पे आप डिपेंड हो जाओगे, राइट? बट इस स्टेज में एक डिफरेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि मे बी बाय दिस स्टेज, व्हेन यू विल रीच दिस स्टेज, आपकी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी हो चुकी होंगी. जो भी आपने लाइबिलिटीज़ इनकर की हैं, मे बी वो लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई होंगी. ठीक है, जो भी आपने लोन लिए हैं वो लोन ख़त्म हो गए होंगे, आपके बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो गई होगी, उनकी मैरिजेस हो गई होगी. तो यहाँ पे अब जो आपका खर्चा रह जाएगा वो क्या है, अपनी प्रेजेंट लिविंग को चलाना, क्योंकि इनकम यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी. आप डिपेंडेंट किस पर होंगे? अगर आपने अर्लियर कोई सेविंग्स की हुई हैं तो, या अगर आपने अर्लियर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उन पर आप डिपेंडेंट होंगे. तो अब हमारा व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड स्टडिंग दिस ILC इज दैट कि whenever we'll make any investments or whenever we'll make any savings, so we need to understand कि हम अपने लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पर हैं. एज ए इन्वेस्टर हम कौन से स्टेज पे स्टैंड करते हैं. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग आवर फाइनेंशियल प्लान,
राइट? ओके, नाउ देन अगेन हम ये स्टडी करने वाले हैं कि हम कैसे सेविंग्स मैनेज कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे तो हम तब करेंगे जब हमें ये पता होगा कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, राइट? अब मेरा फाइनेंशियल गोल, मैं अब अगले साल के लिए पैसे बचाना चाहती हूँ या अगले साल के लिए जितना भी अमाउंट इकट्ठा करना चाहती हूँ, उसके लिए मेरा पर्पस क्या है, वाई आई वॉन्ट टू गेट दैट अमाउंट, और कितना अमाउंट मैं चाहती हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मेरा पर्पस क्या है? तो पर्पस क्या है? एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट पर्पस क्या हो सकता है कि जब आप रिटायर हो जाओगे तब आप अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करोगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे या यू विल बी हैविंग योर ओन इनकम्स, यू विल बी लिविंग, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ ओनली, आपके पास अपना क्या है? तो उसके लिए हम रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं। तो आई विल बी स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग टुडे ओनली, आज से ही मैं प्लान्स बनाऊंगी, सेविंग्स करूंगी, इन्वेस्टमेंट्स करूंगी, सो दैट कि मेरा फ्यूचर जो है वो फाइनेंशियली सिक्योर हो, राइट? अपने बच्चों की एजुकेशन को प्लान करना है मुझे, कैसे करूंगी अपने बच्चों की एजुकेशन को प्लान? सिर्फ अपनी रेगुलर इनकम के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, हमें उस रेगुलर इनकम को प्लान करना है, इन्वेस्ट करना है समवेयर, सो दैट कि जब हायर एजुकेशन की बात आती है सो वी डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। सेकेंड, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, आप कुछ परचेजेस करना चाहते हो, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई नेट वर्थ क्रिएट करना चाहते हो, यू वांट टू जनरेट ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। तो दीज आर सम ऑफ द गोल्स ऑफ एन इन्वेस्टर। कोई भी गोल हो सकता है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हो, आप अपने लिए कोई व्हीकल खरीदना चाहते हो, कोई इक्विपमेंट्स, कोई फर्नीचर खरीदना चाहते हो, एनीथिंग, ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कैन बी एनी रीज़न, कैन बी एनी ऑब्जेक्टिव। तो प्लान करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक इन्वेस्टर्स के गोल क्या होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई यू वॉन्ट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस इज, हमने प्लान तैयार कर लिया, हमें अपनी प्रेजेंट कंडीशंस पता है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स पता है। नाउ इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इवन इफ आप एक घर बनाना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप सब चीज़ों के लिए क्या है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो आपकी रेगुलर इनकम आ रही है, अगर उस इनकम को आप एज इट इज स्पेंड कर देते हो तो यू विल नेवर बी एबल टू बाय अ हाउस फॉर योर सेल्फ। आप उसको ऐसे स्पेंड कर देते हो तो यू विल नेवर बी एबल टू बाय अ कार फॉर योर सेल्फ। कुछ भी हमें करना है लाइफ में, एसेट क्रिएट करना है, नेटवर्थ क्रिएट करनी है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? सेविंग से। आज सेव करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू बाय समथिंग इन नियर फ्यूचर, ठीक है? तो सेविंग्स क्या होती हैं? सिंपल सी चीज़ है, आपकी जो भी इनकम आती है उसका वो पोर्शन जो आप यूज़ नहीं करते हो, वो पोर्शन जो आप सेव करके रख लेते हो, जिसको हम कहीं पर भी एक्सपेंड नहीं करेंगे, कहीं पर भी स्पेंड नहीं करेंगे, उसको आपने अपने पास सेव करके रख लिया है कैश में, ठीक है? तो सेविंग से जब आप अपना इनकम का कुछ पोर्शन यूज़ नहीं कर रहे हो एट प्रेजेंट कहीं पर भी, राइट? उसको आपने अपने बैंक अकाउंट में सेव किया है, कैश अपने इन हैंड सेव किया है, कहीं पर भी सेव किया है, बट उसको आपने यूज सेपरेट रखा है दैट यू विल नॉट बी यूजिंग दिस अमाउंट फॉर एनी एक्सपेंडिचर एट प्रेजेंट सिचुएशन में आप उसको यूज नहीं करोगे। दिस इज योर सेविंग्स। क्यों करते हैं हम सेविंग्स? सेविंग्स स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल प्लान का। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप सेविंग होता है। क्यों? क्योंकि सेविंग इज समथिंग जो जिसमें बिल्कुल भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। सेविंग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पैसा है जो आपने सेव किया है वो कहीं डूब जाएगा। जैसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि पैसा डूब सकता है। सेविंग इज समथिंग जहाँ पे आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है सेविंग। जो हम क्या करते हैं सेविंग में, इनकम में से कुछ पोर्शन निकाल लेते हैं कि ये पोर्शन हम यूज़ नहीं करेंगे अभी के लिए, एट प्रेजेंट, राइट? गेट दिस पॉइंट। हम सिर्फ अभी की बात कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट हम उस सेविंग के अमाउंट को यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर?
क्यों करते हैं हम सेविंग, रीज़न क्या होता है सेविंग्स का? जो भी पैसा आपने बचाया है उसको सेव करने का जो ओनली पर्पस है, पहला जो आपने अपने लिए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तैयार किया है उस ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट में वो हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? अब वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है राइट। बट फिलहाल हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की। तो सेविंग्स जो होती हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जैसे अगर आपने पैसा सेव किया है तो सडनली आपके घर पे कोई इनएबिलिटीज हो जाती है, द पर्सन हु इज अर्निंग मेंबर है सपोज कीजिए, वो इनेबल हो जाता है फॉर सम पीरियड, ठीक है, तो उस पीरियड को आप कैसे सर्वाइव करोगे? ऑब्वियसली अगर आपके पास सेविंग होगी। एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन एग्जांपल कि जो कोविड का पीरियड था बहुत लोगों की जॉब्स चली गई, तो उन जॉब्स में 2-3 महीने आपने कैसे सर्वाइव किया? जब तक आपको न्यू जॉब नहीं मिली आपने कैसे सर्वाइव किया? तो अगर उस टाइम पर आपकी सेविंग्स थी तो यू कुड हैव सर्वाइव्ड। इसका मतलब सेविंग का मतलब क्या होता है कि हम उस टाइम पे यूज़ नहीं करते हैं जब हमने उसको रिमूव किया है, निकाला है इनकम में से, सेव किया है। हम इसे कब यूज़ करते हैं? जब नियर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी अराइज हो रही है, उस इमरजेंसी को मीट करने के लिए। सेकेंड चीज़, आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है जब आप सेव करते हैं। भले ही आपने अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के लिए सेव किया है, लेकिन अगर आपने सेव किया है तो आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है कि आपके पास कुछ अमाउंट है। अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो जाती है, अगर मेरी जॉब चली जाती है, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, सिकनेस हो जाती है, देन आई विल बी एबल टू फीड माई फैमिली। तो सेविंग ये पर्पस सॉल्व करती है, ठीक है, सिक्योरिटी देती है आपको, आप अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेविंग। एंड सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट। आप आज अगर सेविंग्स कर रहे हो तो सेविंग्स क्या कर रही हैं? वही सेविंग्स कल जब ह्यूज अमाउंट बनता है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फॉर एवरी फाइनेंशियल प्लान टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू स्टार्ट विद द सेविंग। और सेविंग क्या है? अपने इनकम में से एवरी मंथ वॉट एवर यू आर अर्निंग, सेव सम पोर्शन फ्रॉम दैट। उस पोर्शन कैसे सेव कर रहे हो? आप कैश बैंक अकाउंट में सेव कर रहे हो, इन हैंड सेव कर रहे हो, इट इज अप टू यू। अब सेविंग्स होती क्या है, ठीक है, नेचर क्या है सेविंग का? जीरो रिस्क इन्वॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेविंग का फीचर है वो क्या है? जीरो रिस्क इन्वॉल्व। यहाँ पे कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है कि आपने जो पैसा सेव किया है, जो आपने अभी तक खर्च नहीं किया है, वो कहीं डूब जाएगा। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेविंग इज दैट जीरो रिस्क इज इन्वॉल्व। सेकेंड इज, आप जब सेव करते हो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सेव कर सकते हो, बट जनरली वी आर सेविंग फॉर द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में इट कैन बी एनी ऑब्जेक्टिव, जैसे कोई इमरजेंसी अराइज हो गई, कोई अनएक्सपेक्टेड बिल्स आपने पे करने हैं, आपने वोकेशन प्लान करनी है, ठीक है, कोई मैरिज फंक्शन प्लान करना है, तो उसके लिए आप सेव कर सकते हो। एंड सेव करने के बाद यू कैन गेट इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन योर सेविंग्स। आपको अपनी सेविंग्स पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो सेविंग्स जो होती है आपका फर्स्ट पार्ट होती है इन प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कितनी तरह के सेविंग, आप कहाँ कहाँ पे सेविंग कर सकते हो, ये दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच आप अपनी सेविंग्स को प्लान कर सकते हो। सेविंग्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वॉलंटरी सेविंग्स एंड कंपल्सरी सेविंग्स, ठीक है। कंपल्सरी सेविंग इज योर प्रोविडेंट फंड। जैसे आपने देखा होगा जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग मंथली इनकम, उनको जो मंथली इनकम मिल रही है उसके बाद दे कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड होता है, ये दिस इज अ काइंड ऑफ सेविंग टू एवरी पर्सन जो दे विल गेट आफ्टर दे गेट रिटायरमेंट फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन। जब वो अपनी जॉब से रिटायर हो जाएंगे तो उनके पास एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा विच दे कैन यूज फॉर देयर लिविंग। अगर उन्होंने इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं की है तो एटलीस्ट दिस सेविंग विल बी देयर विद देम, जो वो यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर रिटायरमेंट। इसके अलावा वॉलंटरी सेविंग्स जो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ कैसे सेव करना चाहते हो, ठीक है। आप
बैंक्स में सेव कर सकते हो, जैसे हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, एफडीज चलाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो फॉर पर्टिकुलर पीरियड, से फॉर एग्जांपल 1 ईयर 2 ईयर के लिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो आफ्टर 2 years यू विल बी गेटिंग दैट 1 lakh विथ सम इंटरेस्ट, तो दिस इज अ सेविंग फॉर यू। पोस्ट ऑफिस में आप सेव कर सकते हैं, इंश्योरेंस में आप सेव कर सकते हैं, तो दीज आर वॉलंटरी स्कीम्स, वॉलंटरी ऑप्शंस, मतलब दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू वेदर यू विच ऑप्शन यू वांट टू यूज। You want to use, go to the bank, you want to use a post office, you want to use insurance, every particular type will give you a benefit। benefit क्या है कि they are saving your money, कहीं पे भी risk involved नहीं है। Then comes next step after saving, if you want your plan to be successful, you have to go to the investment, right? अब सेविंग करने के बाद, सेविंग हमारा पहला स्टेप होता है। सेविंग करने के बाद सपोज कीजिए फर्स्ट 6 months 7 months 8 months तक आपने सेविंग्स की एंड दैट सेविंग्स आर विद यू ओनली, यू हैव नॉट यूटिलाइज दैट अमाउंट एनीवेयर। आपके पास इतना अमाउंट कलेक्ट हो चुका है। अब उस सेविंग्स पे हम जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि सेविंग्स ठीक होती है, पैसा सेव है, मिनिमम इंटरेस्ट भी आ रहा है, वो लोग सोचते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जो लोग ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, अब वो सेविंग के बाद हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, सेविंग्स आपको एक लिविंग चलाने में हेल्प करती है। आपकी जो लाइफ है थ्रू आउट उस लाइफ को कॉन्टिन्यूसली आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें, उसमें आपको सेविंग्स हेल्प करती है। बट अपनी लाइफ में अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेविंग से निकल के सेकेंड स्टेप पे जाना पड़ेगा, विच इज़ इन्वेस्टमेंट। Unless you won't do any investment, you will not financially grow in your life. Savings आपकी एक stable life चलाएगी। Savings से आप you will be able to earn a good living also, you will be able to live a good life also. But if you want to grow in life, you don't want to be stable in your life. Stable चाहते हो but slow नहीं होना चाहते हो, grow करना चाहते हो financially, then you have to go to investment. अब investment क्या होती है? Savings में हमारे पास एक option था कि हमने सपोज कीजिए 60,000 सेव किया है, तो वो 60,000 एज एंड व्हेन यू रिक्वायर, व्हेन यू वांट, आप उसको यूज़ कर सकते हो। नोबडी विल कम टू यू, नोबडी विल से एनीथिंग टू यू कि वाई यू आर यूजिंग दिस मनी। बट इन्वेस्टमेंट में यू आर ब्लॉकिंग योर फंड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पहले ह्यूज अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हो। सेकेंड, वेन एवर यू आर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट यू आर ब्लॉकिंग योर फंड्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, मतलब आपने उस फंड्स को लॉक कर दिया है। आपने 2 years के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, इट मीन्स 2 years के लिए आप वो अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हो, राइट। थर्ड इज सेविंग्स जो थी बिल्कुल भी जीरो रिस्क वॉज देयर इन सेविंग्स, बट इन्वेस्टमेंट वेरी करती है। यू कैन हैव इन्वेस्टमेंट विद लो रिस्क, यू कैन हैव इन्वेस्टमेंट विद मीडियोकर रिस्क, you can have investment with higher risk and जितना higher risk होगा उतना higher return भी होगा। Investment will always give you higher return as compared to your saving। Savings में इतना रिटर्न आपको नहीं आता है। आप जितना सेव करते हो, आप ये कह सकते हो कि आफ्टर 6 months वो अमाउंट आपने यूज़ कर लिया अपने इमरजेंसी के लिए या जो भी रिक्वायरमेंट थी। बट इन्वेस्टमेंट में वॉट एवर अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इट विल गिव यू रिटर्न्स, उसके ऊपर आपको रिटर्न्स more than savings you will get. That is why investments are very important if we actually want to grow financially in our lives. Objectives of investment, objectives हमारे वही हैं जो हमारे savings के थे, but savings में हमने short term objectives बनाए थे कि हम amount accumulate कर रहे हैं to achieve financial objectives. यहाँ पे investment will help you to achieve those objectives. ठीक है, आप सिक्योर होना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो आपने अभी से ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है विच विल गिव यू हायर रिटर्न्स एट द टाइम व्हेन यू विल गेट रिटायर। यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, यू वांट टू बाय अ हाउस फॉर योरसेल्फ, देन इन्वेस्टमेंट विल हेल्प यू टू गेट अ ह्यूज अमाउंट विच सेविंग्स विल नेवर। सेविंग्स सिर्फ एक स्टार्टिंग स्टेप था,
अगर आप हर ये सोचते हो कि हर महीने 10,000 सेव करके एट द एंड जब आपने 1,20,000 सेव किया तो अब आप उससे घर खरीद लेंगे, तो नो, बिकॉज उस 1,20,000 की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर वही हो जाएगी जो आपने स्टार्ट में की थी। जनवरी में जब आपने स्टार्ट करना शुरू किया था, जो वो वैल्यू थी उस टाइम पे मनी की, वही वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगी। तो यू विल बी एट द सेम पोजीशन, राइट। तो अगर हम एक्चुअल में घर खरीदना है, एक्चुअल में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक्चुअल में हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वी विल हैव टू मूव टू इन्वेस्टमेंट्स, राइट। इन्वेस्टमेंट्स कैसी होती हैं? अब इन्वेस्टमेंट्स का नेचर क्या होता है? सेविंग्स रिस्क ज़ीरो होता है, इन्वेस्टमेंट्स रिस्क वेरी होता है। आपको हर तरह की इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएंगी, लो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। सेविंग्स इंटरेस्ट रिटर्न ज़ीरो है, नेग्लिजिबल रिटर्न होते हैं सेविंग्स में। व्हेन यू आर सेविंग यू विल गेट नेग्लिजिबल रिटर्न्स। नेग्लिजिबल रिटर्न्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, 6 मंथ से रखा है, तो बहुत हार्डली, बहुत कम इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर, ठीक है, जो ना के बराबर होगा। बट इन्वेस्टमेंट में वॉट एवर इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, दैट इंटरेस्ट इज हायर देन द इंटरेस्ट विच विल गेट फ्रॉम सेविंग्स, ठीक है। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट हम करते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के मैरिजेस के लिए, अपना घर खरीदने के लिए, कोई रियल एस्टेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इज दैट क्लियर? तो जितनी इन्वेस्टमेंट में पोटेंशियल जो है रिटर्न्स का इज ऑलवेज मोर एज कंपेयर टू सेविंग्स। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नाउ इन्वेस्टमेंट्स को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड सेकेंड इज डेट इन्वेस्टमेंट, राइट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? विच इज रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। हाई रिस्क है, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो, मीन्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो आप, तो वो क्या है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो क्या मिलेंगे आपको? हायर रिटर्न्स। जितनी रिस्की इन्वेस्टमेंट है उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो रिटर्न्स हैं वो हायर होंगे। इट इज़ फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क, ठीक है, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, ये उनके लिए हैं। जैसे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 30 से 55 ईयर्स का जो गैप होता है, एज होता है, वहाँ पे हमारी इनकम भी ग्रोइंग होती है और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं। तो उस एज में, उस लाइफ साइकिल में जो भी इन्वेस्टर है, इफ़ ही इज़ रेडी टू टेक रिस्क, then he can go for equity investment, right? But every one of us, हम में से 100% लोगों में से सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। What about 90% people? वो कहाँ पे सेव करें या कहाँ पर इन्वेस्ट करें? They also want to invest, सेव नहीं करना चाहते हैं, सेविंग से थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो किस में करेंगे? डेट इन्वेस्टमेंट। डेट इन्वेस्टमेंट विद लो और स्टेबल रिस्क, मिनिमम रिस्क, ठीक है, वेयर जो रिटर्न्स हैं वो स्टेबल है। आपको ये पता है कि किसी भी कीमत पर आपका पैसा डूबेगा नहीं, यहाँ पे आपको रिस्क ज़ीरो होगा यहाँ पे, या रिस्क बहुत कम होगा। जितना कम रिस्क होगा वहाँ पे आपको पता है फिक्स्ड रिटर्न्स आएंगे आपको। जैसे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं फिक्स्ड रिटर्न्स, यहाँ पे आपके रिटर्न्स फिक्स्ड है। यू आर श्योर कि आपने अगर यहाँ पे डेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है तो यू आर श्योर कि आपको रिटर्न आना ही आना है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में देयर इज नो श्योरिटी वेदर यू विल गेट रिटर्न्स और नॉट। यहाँ पे देयर इज 100% श्योरिटी दैट यू विल डेफिनेटली गेट अ रिटर्न। दिस इज डेट इन्वेस्टमेंट। इसको हम अनसिक्योर्ड कहते हैं, इसको हम सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, आप लोगों ने सबने नेम भी सुना होगा म्यूचुअल फंड्स का, ऐड सुनी होंगी टीवी में। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट।
आज आप एवरी पर्सन कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम 500 टू एनी अमाउंट, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स में भी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बट अब हम यहाँ पर रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। जो रिस्क होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का वो एक पर्सन पे नहीं है, वो हज़ारों लोगों में है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे या डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आप गवर्नमेंट, जैसे आपने सुना होगा किसान विकास पत्र, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम्स, ये क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। इनको जब आप परचेज करते हो तो 100% फॉर श्योर है कुछ भी हो जाए आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट कहीं नहीं जाएगा। अगर आप आज एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेते हो तो 100% श्योर है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा उस पर वापस। तो यहाँ पे पैसा डूबने का कोई चांस नहीं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज स्टेबल, राइट। ऐसे ही हमारे पास कुछ और हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं। कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय दिस कॉरपोरेशंस, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो कॉरपोरेशंस इशू करती हैं कमर्शियल पेपर्स फ्रॉम वेयर दे कैन जनरेट फंड्स फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशंस। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स अगेन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर जनरल पीपल सो दैट की फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे कैन गेट। और इनमें इन्वेस्टमेंट में जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन्वेस्टमेंट कम्स विद मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, एक पीरियड होता है जिसके लिए आपका फंड्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे जो डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका जो जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, कमर्शियल पेपर है, इनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत कम होता है, ठीक है, लाइक फ्रॉम इट वेरी फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स ओनली। देन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मीन्स you want to buy a house for yourself, you want to get involved in business of buildings constructions, ठीक है, या अपने लिए एसेट्स खरीद रहे हो, अपने लिए एसेट परचेज कर रहे हो, तो वो क्या है, आपने अपने लिए घर खरीदा है, वो भी एक एसेट है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपने अपने लिए 2 घर खरीदे हैं, प्रॉपर्टीज क्रिएट की हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में हो, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, राइट। देन ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम ज्वेलरी जो आप अपने घर पे खरीद के लेकर आ रहे हो, वो क्या है, वो भी इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच विल पे यू। आप उस इन्वेस्टमेंट से कभी भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं तो आप उन इन्वेस्टमेंट से फेस कर सकते हो, यू कैन फेस दोज फाइनेंशियल क्राइसिस। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर वी ऑल कैन इन्वेस्ट एंड वी कैन ग्रो इन आवर लाइफ फाइनेंशियली, ठीक है। आई होप यहाँ से इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, बट स्टिल एक जनरल ब्रीफ, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। सेविंग्स आपका स्टार्टिंग स्टेप है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए मूव करोगे तो ऑब्वियसली सेविंग से ही स्टार्ट करोगे, डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप अपनी इनकम से इन्वेस्टमेंट पे नहीं जा सकते हो। यू नीड टू सेव सम अमाउंट एवरी मंथ सो दैट कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अमाउंट एक्यूमुलेट कर सको, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, जो मंथली बेसिस की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लाइक इंश्योरेंस से स्टार्ट कर सकते हो आप, या म्यूचुअल फंड से यू कैन स्टार्ट। बेसिकली सेविंग्स स्टार्टिंग स्टेप होता है फॉर एवरी फाइनेंशियल प्लान। सेविंग्स में रिस्क ज़ीरो होता है, एज यू कैन सी वेरी लो और नेग्लिजिबल risk is there in saving, but investment always comes with high risk. Whenever this is the only reason that we in India don't prefer to go for investments. General public, middle class income जो लोग होते हैं, they don't prefer investments. Why? Because very high risk is involved in investment. Returns, सेविंग्स में हम लोगों को ये लगता है कि हमने सेव कर लिया है पैसा तो दैट इज़ इनफ फॉर अस, बट सेविंग में कोई भी पैसा आपको वापस नहीं आ रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न ऑन योर सेविंग्स, बट सो वेरी लो और लेस रिटर्न्स यू आर गेटिंग फ्रॉम सेविंग। बट इन इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स जो हैं दे आर ऑलवेज हायर देन सेविंग। कैसे भी इन्वेस्टमेंट है आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। देन देयर कम्स अ पॉइंट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कैश पोजीशन आपकी।
आप सेविंग्स हम कर रहे हैं, इनकम हम अर्न कर रहे हैं, जॉब्स हम कर रहे हैं, बिजनेस हम अर्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सो दैट कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ईजिली कर सकें। सेविंग्स में आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। आपको जब पैसा चाहिए आपके पास पैसा इन हैंड है, कोई इमरजेंसी हो गई, आप जो भी आपने सेव किया यू कैन यूज़ दैट। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट्स आर लेस लिक्विड, इट मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट में हम पैसा ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक इन द सेंस इन्वेस्टमेंट का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, इन्वेस्टमेंट कम्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड। अगर 1 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड है तो यू विल हैव टू वेट फॉर 1 ईयर टू यूज़ दैट अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे अब उस 1 ईयर में अगर आपको कैश की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो आप इन्वेस्टमेंट्स यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको सेविंग्स ही चाहिए उस टाइम पे, या फिर you will break your investments। जैसे कुछ investments comes with this where you have an opportunity कि आप उस जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है आप उनको ब्रेक कर सकते हो, बट फॉर ब्रेक यू हैव अ पेनल्टी फॉर योर सेल्फ कि वॉट एवर इंटरेस्ट जो आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू।